स्टार्ट कर ले बेटा। सो वेक्टर्स के असाइनमेंट्स कर रहे थे हम लोग। सो कल कौन सा क्वेश्चन था अपना? लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था 5th वन। सो टुडे विल ट्राई टू डू विथ योर 6th। व्हाट इज द डेट टुडे बेटा? 05/02/2021। चलो 6th one देखो बेटा। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स होनी चाहिए which can give you zero resultant partition. For a vector to have an unequal magnitude, minimum 3 vectors have been required to give the resultant vector, zero resultant, like a triangle law mein hota hai basically. So what is the answer for this one? 3 will be the answer. Minimum number of unequal vectors which can give the zero resultant will be equal to 3 in the triangle law. मान के चलो one vector, another vector, and the sum of all the 3 vectors must be equal to 0. So 2 vectors मतलब directly addition of vectors हो रहा basically. ठीक है ना? चलो 7th one. If two forces of equal magnitude act simultaneously on a body in east and north direction, then the body will displace in the north direction, the body will displace in the east direction, the body will displace in northeast direction, the body will remain at your east direction partition. कोई बता सकता है आंसर? If the two forces of equal magnitude are acting simultaneously on a body in the east and as well as of your north direction partition. तो इसके लिए देखो 6th वन के लिए आंसर क्या था? बी। 7th वन के लिए मान के चलो एक बॉडी यहां पर कहीं पर थी, ये हो गया एक डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया मेरे पास वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। उसने क्या बोला? इफ टू forces of equal magnitude act simultaneously on a body in east direction and north direction. तो एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से, मान के चलो F, और एक फोर्स लगा रहा हूँ इसके अंदर, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों का जब सेम होगा, एंगल बिटवीन 90 डिग्रीज होगी, तो ये हो गई रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ योर ईस्ट। इन विच डायरेक्शन बेटा? ये एंगल बनाएगा, दोनों का अगर फेस से सेम है तो एंगल विल बिकम फॉर मी एग्जैक्टली 45 डिग्रीज। So direction will be equal to your north of your east part of it. Clear है? Yes. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. 8th one. Two vectors having the equal magnitude of x units are acting at an angle of 45 degrees have a resultant of under root of 2 plus √2 units. The value of your x is how much? मेरे पास two vectors है बेटा having the equal magnitude of your how much? x. तो मेरे पास मान के चलो p की वैल्यू है x और q की वैल्यू भी है x और q की वैल्यू भी है x और इसका रिजल्टेंट है मेरे पास कितना दिया? देखो रिजल्टेंट have equal magnitude of x units acting at an angle of 45 degrees having a magnitude of under root of 2 plus √2. So magnitude is under root of your 2 plus of your √2 और थीटा की वैल्यू है मेरे पास 45 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 45 डिग्रीज पार्टिकल। ठीक है, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालो। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला बेटा? रिजल्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस वन इज रिजल्टेंट r is equals to resultant is under root of your r is equals to, this will become for me p square plus q square plus 2pq into your cos theta. ठीक है, सो r की वैल्यू इतनी है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा? 45 डिग्रीज। तो r will be equal to your under root of your की वैल्यू कितनी है डाल दो। This one is your x square plus 2 into x into your x into your cos of your theta. Theta value is 45 degrees. तो रिजल्टेंट की वैल्यू डाल दो। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा? दिस वन इज अंडर रूट ऑफ योर, यहाँ पर हो गया 2 प्लस ऑफ योर √2 that is equals to under root of your, ये बना कितना बेटा? x square plus x square, this is your 2x square plus of your 2 into x, ये हो गया 2 into x square into cos 45 is nothing but of your 1 by √2। ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जा रहा है देखो? अंडर रूट ऑफ योर दिस वन विल बी इक्वल टू 2 into x square plus 2 can be written as of your √2 into √2 बेटा, तो √2 चले जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? √2 into your x square। कैन आई राइट लाइक दिस? 2 is nothing but equal to √2 into √2 बेटा।
तो 2 को मैंने √2 इंटू √2 डाला, तो एक √2 चला गया था, √2 इंटू योर x स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ योर 2 प्लस ऑफ योर √2. ठीक है ना. सो 2 प्लस ऑफ √2 इज इक्वल्स टू दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर. इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो बेटा, अंडर रूट ऑफ योर, X आई square. कैन टेक x स्क्वायर मैं बाहर निकालूं तो गया 2 प्लस ऑफ योर √2. तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर 2 प्लस ऑफ योर √2. ये रूट और ये रूट चले जाएगा. सो दिस विल कम आउट फॉर मी हाउ मच बेटा, 2 प्लस ऑफ योर √2 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा, रूट चले जाएगा तो X square into 2 plus of √2. या, तो ये कितना बन जाएगा, X square is equals to 1 sir. हाँ. तो x वैल्यू इंटू योर दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच राइट नाउ, √2 चले जाएगा. तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट ऑफ योर x स्क्वायर वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. दैट मींस x इज आल्सो इक्वल टू 1. तो या इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं बेसिकली 2 √2, इसको x स्क्वायर को भी बाहर निकाल सकता हूँ ना बेट से, रूट से. तो इससे बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट ऑफ योर ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस ऑफ योर √2, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर 2 प्लस ऑफ योर √2. तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे राइट नो. सो 2 प्लस √2 चले जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 1 यूनिट. तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 यूनिट विल बी द आंसर. सो आंसर विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, b. क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. 3 forces are acting on a body are shown in the figure to have a resultant force only along the y direction, only along your y direction. तो इसका मैं एक छोटा सा, चलो अपने को क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर 3 forces are acting on a body are shown in the figure to have the resultant. Resultant कौन सी डायरेक्शन में होना, मेरे को खाली y डायरेक्शन में मेरे को resultant होना. I need the resultant force only in the y direction part of a relation. So the magnitude of the minimum additional force needed, यानी कितना force इसको मैं लगाऊं, so that we'll be getting that answer. So what is the magnitude of the minimum additional force needed is, ये वेक्टर डायग्राम दे रखा है. दिस इज 1 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड दिस वन इज ऑफ योर 2 न्यूटन. ऐसे वाले कभी भी आपको एंगल दिखाई दिए वेक्टर्स में, तो पहले आप क्या करोगे, छट से रिजॉल्व करोगे. तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पर कितना कंपोनेंट आएगा, कोई बता सकता है बेटा? दिस विल बिकम फॉर मी 1 cos 60. और यहाँ पर हो जाएगा 1 into साइन ऑफ योर, ठीक है ना. उसी तरह से 4 न्यूटन को अगर रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं बेसिकली बेटा, 4 न्यूटन का अगर रिजॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4 into cos 30, और ये हो गया 4 into your sin of your 30. वर्टिकल पे और कुछ फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स है, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया राइट नाउ. सो राइट ऑल द फोर्सेस अलोंग योर x axis right now first. x axis में फोर्सेस देखो राइट नाउ बेटा, फोर्सेस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी. सो एक हो गया मेरे पास 1 into your cos of your 60 into i cap था, प्लस अनदर वन इज नथिंग बट ऑफ योर 2 into your sin of your 30 into i cap था, और नीचे के डायरेक्शन में कितना है बेसिकली, और एक फोर्स कुछ दे रखा है क्या इसमें? ओके 2 न्यूटन भी दे रखा है ना बेटा. 2 न्यूटन को भी रिजॉल्व कर सकते हो आप. 2 न्यूटन का रिजोल्यूशन क्या होगा बेटा? But angle is not given as a. तो ये ऊपर का एंगल दिया हुआ है ना बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी निकालो, ये तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री होगी, 2 isn't it? तो यहाँ पर कितना, दिस साइड विल बिकम फॉर मी 2 into your cos of your 30, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 into your sin 30. ठीक है ना. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखा है, 2 into sin of your 30 लिख लिया बेसिकली. ठीक है ना. उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये 1 into cos 60, 2 into sin 30, यहाँ पर हो गया 4 into cos sin 30, 4 into sin 30 minus 4 into sin of your 30 i cap. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो. cos 60 कितना बेटा, 1/2 i cap प्लस ये कितना sin 30, 2 into 1 तो ये कितना हो जाएगा 1 into i cap माइनस sin 30 कितना 1/2 2 i cap 1/2, 4 into 1/2, 2 times of your i. आया? Yes. minus तो 1/2 नेट i फोर्स cap x कितना आ गया, ये Minus दोनों ऐड हो 1/2. जाएंगे, माइनस ऑफ 1/2 i cap. दैट मींस माइनस ऑफ योर 0.5 i cap. x एक्सिस में ये वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ योर पॉइंट ऑफ योर i cap पार्ट ऑफ रिलेशन.
तो इसका मतलब क्या, अगर टू कैंसिल दिस फोर्स मिनिमम ऑफ एडिशनल कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 0.5 आई कैप अलोंग दिस डायरेक्शन बेटा, X axis. Negative x axis. नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर अपने को रिजल्टेंट ओनली एक्स वाई एक्सिस पे होना तो एक्स एक्सिस के पूरे फोर्सेस अपने को कैंसिल होना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर राइट नाउ फॉर मी, 0.5 न्यूटन। डायरेक्शन कुछ भी नहीं दिया, सो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर फॉर दिस वन। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा। देखो कैसे कैंसिल हुआ, मेरे पास कितना फोर्स है, माइनस ऑफ 0.5 आई कैप है। इसको अगर मुझे कैंसिल करना है तो क्या करोगे आप, ये बताओ, एफ को क्या करोगे, we need to add plus 0.5 i cap, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ योर 0.5 इंटू आई कैप, तो इसको ऐड करो 0.5 आई कैप, तो कितना बन जाएगा बेटा एफ एक्स पे, 0. 0। So net fx अगर 0 हो गया, if it is fx is equals to 0, then the forces will only be along this direction, y direction। अगर 0.5 माइनस 0.5 और प्लस 0.5 दिया तो आंसर क्या लिखोगे आप, प्लस 0.5। ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. समझ में आया, Yes, कुछ sir. डाउट किसी को, पक्का ना। Yes, sir. No doubt. चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज हाउ मच। क्वेश्चन समझाओ मुझे कि क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल क्या रहा है मुझे। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स बोल रहा है, यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे बोला था मैंने, N एन cap. कैप से रिप्रेजेंट करोगे। तो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स यानी n1 प्लस ऑफ योर n2 isn't it is again a what, a unit vector, तो वही तो बोल रहा है ना, तो he is telling that only ना, 10th one देखो, ऑप्शन बी इज, isn't it, so ये हो जाएगा n1 प्लस ऑफ योर n2, isn't it, दोनों भी यूनिट वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है, रिजल्टेंट सम है, तो ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स अगेन यूनिट वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज हाउ मच, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो सकता है पूछ रहा है। तो ये तो सम है, तो इन लोगों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा, वेक्टर एडिशन लॉस है, ns स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर n1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 इनटू योर cos थीटा, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा, isn't it? यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कभी भी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू योर cos ऑफ योर थीटा, 2 plus 2 cos theta. isn't it? तो ये कितना हो जाएगा, 1 plus 1 is nothing but of your 2, this is a 2 plus 2 into your cos theta, this is the difference of your unit vector। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी कितना होता है मेरे पास, 1 होगा। so this one will become for me 2 को इधर लेके चले जाओ तो कितना बन जाएगा, 1 minus 2, this will become for me minus 2 minus 1 Minus आएगा, 1. minus 1 is equals to 2 into your cos theta, तो cos theta की वैल्यू कितनी आ गई, minus of 1 by 2। so for what value of cos theta is minus 1 by 2 बेटा, 120 cos degrees. 120, cos 120 degrees is equals to your minus of your 1 by 2। 1/2, ठीक है ना, अब पूछ क्या रहा है देखो बेसिकली, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस पूछ रहा है। अब तो डिफरेंस लगा दो, डिफरेंस का फॉर्मूला अपने को मालूम, ये तो सम का फॉर्मूला था, isn't it? अभी अपने को Yes, sir. चाहिए क्या, डिफरेंस का फॉर्मूला। डिफरेंस का फॉर्मूला भी अपने को मालूम है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस फॉर्मूला राइट नाउ, ND cap is equals to n1 N1 कैप माइनस minus n2 कैप विल बी इक्वल टू डिफरेंस इसका, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर a भी एक यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे बेटा, n of your difference square will be equal to your, this one is n1 square plus n2 square minus 2 times of n1 n2 into your cos of your theta। यूनिट वेक्टर ऑफ n वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो गया 1 प्लस माइनस 2 into 1 into 1, so it is 2 into, this one is nothing but of your 1 into cos of your 120 degrees। थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्रीज, दैट इज नथिंग बट इट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो इसका डिफरेंस देखो कितना हो रहा है बेटा, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, दिस इज माइनस 2 into cos 120 कितना है, माइनस 1 by 2, नथिंग बट इक्वल टू योर 1। डिफरेंस दे रखा है मेरे पास ये, तो दिस वन इज योर n d स्क्वायर ही लिख लेता हूं मैं, दिस वन इज योर n डिफरेंस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताओ जल्दी से,
डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, nd स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर 2, ये हो गया 2 और 2 चले जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर हाउ मच, +1. +1 minus of root minus, that 3 will be equal to plus, this will be equal to 3. So 3 root nd 3. की वैल्यू कितनी आ रही है root बेटा, root 3 will be the answer. 3 second. Root 3 will be the answer for this question. Clear है सभी को? So answer Yes, is how sir. much for your root 3. Okay. Next one Yes, देखो sir. बेटा. Two forces of 12 Newton and 8 Newton are acting upon a body. The resultant force on a body has a maximum value of your how much? कितना हो सकता है बताओ जल्दी से? 20 newtons. Two forces of 12 and 8 Yes. Newton are acting on a body. The resultant of the force on a body has a maximum value of your how much part of relation. तो maximum value कैसे निकालोगे बेटा आप? कभी भी R max will be equal to your A A plus plus of B. your B. 12 plus of your 8, डायरेक्ट क्वेश्चन है, थीटा दोनों के बीच में 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। आ गया ना, सभी को करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. चलो Yes. 12th Yes, one. sir. Two vectors A bar and B bar add up to give a vector C bar. When vector A bar is 3 times as long as the vector B bar and vector B bar is double in the length without changing the direction, then it will found that vector C bar is also doubled in length without changing direction. Then which of the following is true? पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो बेटा। मेरे पास 2 vectors है बेटा, A bar and as well as of your B bar part of relation. So what is the given condition? When vector A bar is 3 times as long as the vector A bar is 3 times as long, and a vector A bar is equals to मैं ले रहा हूँ 3, and vector B bar is double in the length. B bar is double in the length, यानी 2 times of L है, और B bar is 3 times as long, and vector B bar is 2 times of length without changing the direction. Then it is found that vector C bar is also doubled in the length part of relation without changing direction. Then which of the following is true? All 3 vectors must be parallel. B and C must be parallel to each other, but A needs not be parallel to B bar and C bar. A bar and B bar must be perpendicular to each other. It is impossible for the 3 non-zero vectors A bar, B bar and C bar to have the properties stated above. चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन समझो बेटा, सभी चीजें एक ही डायरेक्शन में है बेटा। आया किसी को? टू वेक्टर्स A and B are added up to give a vector C bar. A bar और B bar को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो A वेक्टर कितना है बेटा? 3 times of L मान के चलो। B वेक्टर कितना है? 2 times of your L मान के चलो। And they have been added up to give it third vector. Third vector कैसा आएगा? A bar plus B bar will give me a third vector C bar. ठीक है ना? RL कैसे लिख सकते हो आप? A bar plus B bar minus of C bar must be equal to 0 होना चाहिए। तो ये क्या 0 हो रहा है क्या? देखो A bar की वैल्यू कितनी है? 3L, B bar की वैल्यू कितनी है? 2L, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा? 5L, Yes. isn't it? So all the 3 vectors must be parallel to each other right now. क्या बोल रहा हूँ पर थर्ड वेक्टर भी क्या बोल रहा है? C भी डबल हो रहा बोल रहा है, तो C तो डबल नहीं हो रहा ना। अगर दोनों भी तीनों भी पैरेलल में होते तो सब ऐड होता। ये मान के चलो ऐड हो रहा है, ये मान के चलो ऐड हो रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू A plus B, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो कुछ न्यू वैल्यू आती है 5 वेक्टर, तो दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर भी थर्ड वेक्टर क्या बोल रहा है? डबल हो रहा है। क्या डबल हो रहा है? इससे ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। Then B and C must be parallel to each other, but ये need not be parallel to B and C. दोनों ऐड करे तो ही अपने को पॉजिटिव आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करे तो भी अपने को डबल नहीं आ रहा, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। दोनों को ऐड कर लो बेटा, ऐड करो तो 5 आ रहा। अगर आप ऑपोजिट कर लोगे 3 minus 2 कितना आ रहा? 1 आ रहा, लेकिन डबल नहीं आ रहा, तो थर्ड सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। A and B must be perpendicular to each other। क्या A and B perpendicular होता आएगा क्या? ये मान के चलो 3L यहाँ पर है और ये मान के चलो 2L यहाँ पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ योर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना है? 9, 2 स्क्वायर कितना है? 4 होता है ना। रूट 9 प्लस 4 कितना? अंडर रूट 13। रूट 13 हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड वेक्टर भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली बचा आंसर क्या है ना? इट इज इम्पॉसिबल फॉर द 3 नॉन जीरो वेक्टर A bar, B bar and C bar to have the properties stated above। तीनों भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट डबल जब भी होगा अगर A एंड B की वैल्यू सेम रहेंगे।
अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज है तो थर्ड वेक्टर भी डिफरेंट होगी लेकिन डबल नहीं होगी, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दिस वन। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। सो इसको 2-3 बार फिर से एक बार अपनी तरफ से करने की कोशिश करो और पूरे ऑप्शन को समझने की करो क्या क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। चलो Yes, sir. 13th one देखो बेटा। Two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degrees between them. If the resultant force is equal to 40 root 3 Newton, then the magnitude of the force will be equal to how much? I hope you can do this question beta. Two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degrees between them. If the resultant force is equal to 40 root 3 Newton, then magnitude of the force is how much? 13th one. 14 Newtons. कोई करे क्या? Yes, sir. दोनों फोर्सेस सेम है बेटा, F1 और F2 मान के चलो मेरे पास F है और रिजल्टेंट दे रखा है मेरे पास 40 इंटू रूट 3 न्यूटन एंड थीटा कितना दे रखा है बेटा? 60 प्रॉब्लम में देखो degrees. 60 थीटा degrees. वैल्यू इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, तो सब कुछ दे रखा है तो खाली फॉर्मूला लगाना है ना बेटा, isn't it? Yes. So R will be equal to under root of u, this will become for me F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 into your cos theta, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40 इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया मेरे पास एफ स्क्वायर प्लस दिस इज 2 एफ स्क्वायर इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2. 1/2. तो 1/2 मतलब cos 60 और ये 2 चले गया, एफ स्क्वायर प्लस एफ Yes. स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना बन गया? रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर यानी रूट 3 टाइम्स ऑफ योर एफ, दिस इज योर 40 इंटू रूट 3 चले गया तो 4 इज इक्वल टू कितना है? 40 न्यूटन। 40 Newton. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नेक्स्ट वन देख लो। 13 हो गए ना पूरे इसमें के? इतने ही थे, 13 क्वेश्चंस ही थे इसमें। अच्छा और भी है ना, चलो 14th one. The sum of the magnitude of the two forces acting at a point is 18 and the magnitude of the resultant is 12. If the resultant is 90 degrees with the force of the smaller magnitude, what are the magnitudes of your forces part of relation? So जल्दी से बताओ, ये भी very important question है, good model है, तो ऐसे वाले questions को भी एक से दो बार दिमाग में याद रखना है कि कैसा करना है। The sum of the magnitude of the two forces acting at a point is 18. तो P plus Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 18 and the magnitude of the resultant कितना दे रखा है मेरे पास? R की वैल्यू दे रखा है कितना? 12. Okay. If the resultant is at 90 degrees यानी डायरेक्शन दे रखा है कितना है मेरे को? 90 degrees part of relation with a force of smaller magnitude. That means resultant is making 90 degrees with the force of your smaller magnitude. What are the magnitudes of your forces? Forces part of relation. It's also very good question बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो एक बार दोनों का रिजल्टेंट कितना दिया देखा बेटा? P प्लस ऑफ योर Q, मान के चलो ये दिया रखा है 18। ओके मान के चलो P स्मॉलर फोर्स ले रहा हूं मैं, कुछ भी ले सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, P स्मॉलर है और Q लार्जर फोर्स है, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना दे रखा है बेटा? दोनों का रिजल्टेंट दे रखा है इसने प्रॉब्लम में 12, तो इसने बोला कि रिजल्टेंट जो है दिस इज योर आर बार इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद स्मॉलर, यानी स्मॉलर मतलब P, तो ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्रीज क्या है? डायरेक्शन, यानी Q वेक्टर यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, सो दिस शुड बी द वेक्टर ऑफ योर Q बार और इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगी थीटा। क्लियर है? Yes, sir. चलो तो P plus Q is equal to 18, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। जब डायरेक्शन दे रखा है, डायरेक्टली एंगल दे रखा है, तो अपने को डायरेक्शन का फॉर्मूला मालूम है ना बेटा? tan alpha is equals to your Q into your sin theta divided by your P plus of your Q into your cos theta. अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90. tan 90 is equals to your Q into your sin theta divided by your P plus Q into your cos theta. tan 90 कितना होता है बेटा? 0. Infinity. Tan 90 is infinity. So this is your infinity is equals to Q into sin theta divided by P plus of Q into cos theta. Infinity कब मिलेगा? Anything divided by 0 is infinity. 1/0 is equals to Q into sin theta divided by your P plus Q into cos theta. फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा आप लोगों को, फिर स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। P plus Q cos theta will be equal to 0, यानी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस ऑफ योर Q into your cos theta। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली हो गया इक्वेशन नंबर 1। So from 192 I can simplify the relation बेटा।
from 1 and 2, 1 and 2. So this one is how much for me? P plus Q is equals to कितना था मेरे पास? 18. P plus Q कितना था? 18. P की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ Q into cos theta plus of your Q is equals to 18. लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा? Yes, sir. रिजल्टेंट दे रखा है ना Q into sin theta. चलो 12 मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लूँ ना 192 के लिए. रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या होता है? R is equals to R square is equals to this will be equal to P square plus Q square plus 2P cube into your cos theta. ठीक है ना? In place of Yes, Q cos theta, we can place minus P, right, sir? हाँ वही देख रहा हूँ मैं. ऐसे लिख सकते हैं ना. So R square is equals to P square plus this is Q square. तो ये बन जाएगा plus 2 into P Q cos theta की जगह मैं minus P लिख दूँ. तो ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ऑफ 2P स्क्वायर. तो ये हो गया R स्क्वायर. R की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में? रिजल्टेंट कितना दे रखा है? 12. 12 R स्क्वायर दे रखा है, खाली R दे रखा है. R वैल्यू ना. R value. तो P प्लस Q होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको? Yes. yes sir लिख सकता हूँ ऐसा? नहीं लिख yes सकता. sir P minus Q No, sir. नहीं लिख सकता. It must contain नहीं लिख minus सकते, 2PQ. 2P क्या? Q आना था. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करो. इन दोनों का कितना हो जाएगा? Minus P square. Minus P square. लिख सकता हूँ ऐसा? माइनस पी स्क्वायर कहना राइट. इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना बेटा. ये कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ पी स्क्वायर. ये हो गया कितना? प्लस Q Plus स्क्वायर. Q square. क्लियर है? yes sir इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं. a प्लस बी इंटू योर a माइनस बी कितना है? A square minus B A square square minus B square. a स्क्वायर Minus B square. minus Minus B B square square. माइनस बी स्क्वायर. P plus Q into P minus Q. P plus Q is given. तो That is इसको मैं अगर 18. रिवर्स कर दूं तो कैन आई राइट दिस वन एज Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 2 square minus P square ना sir. A square B square minus B minus square. B square Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर P square लिख सकता हूँ. Yes, sir. तो मेरे पास Q स्क्वायर है. सो स्मॉलर वेक्टर है. एक मान के चलो वेक्टर दे रखा है मैंने A Q plus P and this P plus Q is given so in I the can question write as here 18. Q square minus of P square मतलब ये क्या बन जाएगा? Q plus P into your Q minus of your P. लिख सकता हूँ ऐसा? yes Yes, sir sir. तो P plus Q और Q plus P will be one and the same. ये कितना है मेरे पास? 12 into 18 ये sir. कितना आ जाएगा? Q 18 है minus sir. of 18 है. Sorry, okay. This one is your 18. P Q minus P ये कितना आ जाएगा बेटा? Q square minus of Result your ना P sir. square. हाँ तो ये Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पर ही लिख सकता हूँ ना बेटा. सॉरी, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकता हूँ ना इसको. यानी ये हो जाएगा 12 स्क्वायर is equals to this one will be equal to your Q plus of your P into your ये कितना बन जाएगा? Q minus of your P. Q plus P कितना है मेरे पास? 18. सो ये हो गया मेरे पास 12 स्क्वायर. ये हो गया Q into your Q minus of your P. हो गया. तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. 18 टाइम्स ऑफ Q माइनस ऑफ 18 टाइम्स ऑफ योर P. 12 स्क्वायर कितना होता है? 144. 144. 144. तो मैं इसमें से कोई भी एक टर्म निकाल लूं, isn't it? तो माइनस 18 P स्क्वायर को इधर चले गया तो 144 ये बन जाएगा प्लस 18P is equals to 18Q हो जाएगा. This is your equation number 2. Substitute that one in the equation number 1. Substitute 2 ये 3 लेता हूँ basically. Substitute your 3 in your 1. तो P plus Q कितना है मेरे पास? 18 था ना. तो ये हो गया P का वैल्यू एज इट इज. Q की वैल्यू कितनी आ गई? 18 टाइम्स ऑफ योर. ये किसकी वैल्यू है मेरे पास? Excuse me, sir. हाँ बेटा. We can directly take the value of Q minus P and simplify ना sir. Yes, sir. Q minus P ले लेके सिंप्लीफाई कर लो.
144 divided by 18. हाँ, ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू q माइनस p, होता है ना? Yes. मेरे पास दे रखा कितना है, p प्लस q इंटू योर p माइनस q विल बी इक्वल टू योर, ये कितना हो जाएगा, ये कितना है मेरे पास, कहाँ जाएगा, ये वैल्यू है ना, सो q माइनस ऑफ p, गलती कर रहा हूँ, तो बराबर ही है ना, p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट में डाला मैंने, तो रिजल्टेंट में डाला r की वैल्यू आ रही है, r वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, कितना आ गया ना, 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, a प्लस b इंटू योर a माइनस b इज इक्वल्स टू a We स्क्वायर are doing माइनस, right here. तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, p प्लस q इंटू Q a minus माइनस P is 8. q माइनस p P इज 8. We 8 can कहाँ से आया, simplify. Here, sir, 144 by 18 we are taking, right? 144 by 18 is 8. हाँ, So तो P इसकी plus Q वैल्यू is कितनी है, 18 and P. ठीक है, ये कितना आ रहा, Sure. p प्लस q इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इसी में से ले लेते हैं ना, p की वैल्यू ले लो इसमें से, p की वैल्यू कैसे ले सकता हूँ मैं, 18 माइनस q लिख सकता हूँ क्या, We can solve equation 1 and this equation, na sir. P हाँ, वी plus कैन Q इवन and डू लाइक, या डायरेक्टली हम लोग इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो q की इधर लेके चले जाओ, तो p की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 18 minus Q. 18 minus q. 18 माइनस q, तो ये मान के चलो इक्वेशन 3 है, और ये मान के चलो इक्वेशन 4 है, 4 को लेके जाके 3 में डाल दो, सो सब्स्टिट्यूट 4 इन योर 3, तो ये बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू q माइनस p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18 माइनस 18 ऑफ योर, minus Q. ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, इट इज p माइनस ऑफ योर 18, तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस Plus q, Q. तो क्या आ रहा है यार, ये पूरा कैंसिल ही हो जा रहा है, Yes, sir. तो दोनों सॉल्व कर लेते हैं ना, तो बेटे 3 एंड 4 को सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, सॉल्विंग 3 एंड 4 कितना आ रहा है, p प्लस q की वैल्यू कितनी है, 18 है, या p की वैल्यू कितनी है, दिस वन इज 18 एंड q माइनस ऑफ p विल बी इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 18, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो P sir. क्या कैंसिल हो रहा है, P, sir. देन पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2Q. 2q इज इक्वल्स टू, ये वाले कितनी आ रहा 26. 26 sir. है, 26 आ रहा, Yes, sir. 26, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 13. 26 डिवाइडेड बाय 2, तो q की वैल्यू कितनी हो 13. गई, 13. 13, तो q की वैल्यू हो गई 13, अगर q की वैल्यू 13 हो गई तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ p बेटा, सो p प्लस q कितना था, 18 था, It's इट इज 18. p प्लस दिस वन इज 13 इज इक्वल्स टू 18, तो p की 18. वैल्यू कितनी आ 5. जाएगी, 5, सो p की वैल्यू हो गई 5, ये ऑप्शन में है क्या, 12 कॉमा 4, 14 C कॉमा option. 4, 5 5, कॉमा 13. 13, 5 comma थर्ड 5, 13. ऑप्शन है 13. क्या, Third Yes. option. गुड क्वेश्चन बेटा, जरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, बाकी का सब आराम से निकल जाएगा, चलो 6 Yes, वेक्टर्स sir. a bar through the f bar have the magnitude and direction as indicated in the figure, which of the following statement is true, चलो जल्दी से बताओ, अच्छा वाला क्वेश्चन है D ये, option. D. कैसा है Fourth बेटा, option. which of So the following, magnitude b plus e resultant को F ऐड bar. करो, हाँ b और e को ऐड करोगे, b और e को ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, देखो ये वाला b है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाला e है, तो रिजल्टेंट जो आएगा बेसिकली Bar. कुछ आएगा क्या, कितना आएगा, F bar. f F bar, bar. हाँ, तो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ योर f bar पार्टिकुलेशन, तो है क्या वो b प्लस e D इज plus. इक्वल्स टू योर, देखो No, फिर से एक बार, D plus E, sir. D plus E. Fourth option. d प्लस e, या b Plus C, प्लस F bar. e, ये नहीं आएगा,
B प्लस सी देख लो, B प्लस सी मतलब B नीचे जा रहा है, ये नीचे, दोनों के एंगल इस डायरेक्शन में आ जाएगी, रिजल्टेंट आएगा। देन D प्लस ऑफ यूवर, ठीक है ना, D प्लस सी, ये हो गया D और ये हो गया C, तो ये हो गया D, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद C, ये D है और ये E है, या इन दोनों को ऐड करो तो ये रिजल्टेंट आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो यहाँ पर मैं अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, तो ये हो गया D बार ऊपर के डायरेक्शन में है, दिस वन इज योर D बार, और उसके बाद E बार इस डायरेक्शन में है, सो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू F, ठीक है। Yes, sir. ए प्लस बी ऐड करो तो नहीं आएगा, ए प्लस बी ऐड करो तो कौन डायरेक्शन में आ रहा है, देखो, ये ए वाला है और ये बी वाला है, तो इन दोनों का ऐसा आ जाएगा, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए, ये तो वेक्टर कहीं पर भी नहीं है। उसी तरह से बी प्लस सी, सभी को क्रॉस चेक कर लो, दैट विल गिविंग आंसर फॉर, तो आंसर इज क्या है मेरे पास, डी। चलो 16th वन देखो बेटा जल्दी से। The resultant of two vectors P and Q is R. If the magnitude of the Q is doubled, the new resultant becomes perpendicular to your P. Then the magnitude of the R will be equal to your how much? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा. So make it your n number of times important model. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. कोई करे क्या क्वेश्चन? The resultant of two vectors P and Q. If the magnitude of the Q हम लोग ने किया कितना doubled, if Q is being doubled, the new resultant becomes perpendicular to your P. The new resultant becomes perpendicular to your P part of relation. Then the magnitude of your R will be equal to your how much? And the magnitude of the R will be equal to your कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 16 देखो क्या क्या दे रखा है प्रॉब्लम में. The resultant of two vectors P plus Q is equal to R. यानी वेक्टर P plus Q ले रहा हूँ. This one is of your P bar plus of your Q bar. P plus Q is equals to R bar. ठीक है ना? ट्रायंगल लॉ लगा लो. This is a vector P bar and this one is say for example of your vector Q bar and this will be the resultant of this one. तो ये हो गया R bar. इन दोनों के बीच में एंगल हो गई है. This is nothing but theta और ये हो गया डायरेक्शन. That is nothing but of your alpha. क्लियर है सभी को? उसके बाद उसने क्या बोला देखो, the resultant of two vectors P and Q is R if the magnitude of the Q is doubled. अपने Q को हम लोग क्या किया अभी डबल कर दिया, then the new resultant is becoming perpendicular to your, the new resultant is becoming perpendicular to your P. जो new resultant आ रहा, so this one is nothing but of your P bar and this should be taken in terms of your R bar. The new resultant is perpendicular